The topic of this presentation is carbon cycle. So what is a carbon cycle? We'll discuss in this the sources of carbon, the importance of carbon cycle, the process and all the conversions of different form of carbons we will study in this cycle. So what is carbon cycle? It is a biogeochemical cycle in which carbon is exchanged among the biosphere, pedosphere, geosphere, hydrosphere and atmosphere of the earth. It means biogeochemical cycle means it includes biological process as well as geological process. Now in earth atmosphere the CO2 is present is only 0.32%, which is a very small amount of percentage. The process of photosynthesis, respiration, decomposition move carbon through the carbon cycle as CO2. So, what are the processes that are included in this are photosynthesis, respiration, decomposition, combustion, etc. Carbon is the backbone of the life on Earth. Let's discuss further the sources of carbon. Now, अब हमें जो कार्बन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, उसकी सोर्स क्या है? उसकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. Organic compounds include sugar, starch, in living and in dead organism in the biosphere it is also found. As a gas, it is found as CO2, carbon dioxide, which is a main reservoir, and second is methane in the atmosphere, and also carbon dioxide, which is also in the atmosphere it is found. नाउ अगर हम उसकी परसेंटेज की बात करें या उसकी क्वांटिटी की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, उससे कम मीथेन एंड सबसे कम हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड. नेक्स्ट, it is also present in soil in the form of organic matter. Next, in the lithosphere it is present as fossil fuels and in sedimentary rocks, which is the largest reservoir. मतलब सबसे ज़्यादा largest जो है, मेन रिजर्वॉयर तो ये हैं कि मेनली, लेकिन अगर लार्जेस्ट की बात करें तो वो है सेडिमेंटरी रॉक्स. सेडिमेंटरी रॉक्स क्या होते हैं? जैसे कि क्या होता है कि आपका डिकम्पोजिशन होता है, एक्यूमुलेशन होता रहता है मटेरियल, और मटेरियल एक्यूमुलेट होता रहेगा और वो क्या करेगा, एक्यूमुलेट होके एक रॉक की फॉर्मेशन कर लेगा, तो लेयर्स बनेंगी, लेयर से रॉक बनेंगे. सो दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटरी रॉक्स, जिसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो है लाइमस्टोन, विच ऑल्सो इंक्लूड चॉक एंड डोलोमाइट. In the ocean, it is also present as a dissolved hydrocarbon as calcium carbonate, CaCO3. It is also the main reservoir. Now, as and ये CaCO3 कहाँ पर present है? It is present in the shells in the marine creatures, example like corals. अगर हम सोर्सेज की बात करें या एक कार्बन साइकिल के ट्रांसफ़र की बात करें तो जो हमारा मेजर होता है वो क्लाइमेटिक चेंज होता है, टेम्परेचर विच इंक्लूड्स इट इज़ अफेक्टेड बाय टेम्परेचर. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सोल्यूबिलिटी से प्रेजेंट एज अ सोल्यूबल कंपाउंड प्रेजेंट होती है ओशन कार्बन में, ओशन मिक्स लेयर में, जिसको हम टोटल ओशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम एज अ CM डिनोट करते हैं. नेक्स्ट इज इन द एटमॉस्फेयर द कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड दिस कार्बन इज अपटेक by the atmosphere and by the with the process of partial pressure quantity it is converted back into the ocean. Now this in and now this as respiration the land carbon, total vegetation, soil carbon through respiration is moved to the climatic, due to climatic change it moves to the ocean and then to the atmosphere. The carbon is also uptake into the atmosphere from the soil. Now here this is fertilization effect. So what is it? इसमें क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो ट्रांसपीरेशन वगैरह होते हैं लीव्स के थ्रू उसे वो डिक्रीज हो जाता है. सो लिमिटिंग द ट्रांसपीरेशन एंड इंक्रीजिंग द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस. उसके थ्रू भी क्या होगा, सिंथेटिक के थ्रू वो लैंड में जाएगी, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होगी, CO2 विल बी कन्वर्टेड इनटू लैंड कार्बन. सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द कार्बन साइकिल प्रोसेस. Now let's further see this the diagram. So this is a diagram of the typical carbon cycle. In the atmosphere it is present as CO2. Further, now this CO2 is converted by the process of photosynthesis, is utilized by the plant and it is converted into organic carbon, carbohydrates. Now these carbohydrates are utilized by animals. These animals by the process of respiration create this CO2 into the atmosphere in the form of CO2 again. Now oceans also have CaCO3 carbon source, so these are also released in the atmosphere. Now plant also respire, through respiration it is also excreted into the atmosphere.
Now, when the plant decays, when it dies and it decays, it is converted into dead organism, and also the waste product of animals, that is converted into fossil fuels and fuse. So these are the organic form of carbon. Through root respiration, the carbon dioxide is released. Now, after fossil fuels are formed, this organic that waste is also converted into mineral carbon. Now our factories and vehicles all emit carbon into the atmosphere in the form of CO2. So this is the overall carbon cycle. अगर हम मेजर डिवीजन ऑफ ग्लोबल कार्बन साइकिल की बात करें कि वो कहाँ कहाँ पर डिवाइड होती है, तो वो एटमॉस्फेयर में होती है इन द प्रेजेंस एज अ CO2. इट इज़ प्रेजेंट इन द टेरेस्ट्रियल बायोस्फेयर. बायोस्फेयर में कार्बन कहाँ इनकॉपरेटेड है? इन द सर्फेस ऑफ द अर्थ बाय लिविंग बींग्स के थ्रू, जो अर्थ के सर्फेस में वो इनकॉपरेटेड होती है. थर्ड, ओशियनिक कार्बन साइकिल. ओशियनिक कार्बन में कौन सी होती है? जैसे कि हमने पढ़ा था कि calcium carbonate, in the form of calcium carbonate, carbon is present in the shells or in the corals. नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज जियोस्फीयर. जियोस्फीयर में वो कैसे प्रेजेंट है? द एक्सेसिव कार्बन इज ट्रैप्ड डीप विद इन द अर्थ क्रस्ट में, वो डीप में ट्रैप्ड है इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ द मिनरल्स एंड फॉसल फ्यूल्स. सेडिमेंट्स जैसे कि लैमस्टोन के एंड डोलोमाइट, जिनमें वास्ट अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट है. नाउ at last, it is also trapped in the inner parts of the planet Earth, and the mantle and the core of the Earth have a grave quantity of carbon present in there. Carbon from the lower mantle often leaks to the atmosphere by volcanic activities के through लोअर मेंटल से वो. नाउ लोअर मेंटल कैसे? जैसे कि हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर है, जो ये इसकी आउटर लेयर होती है ये क्रस्ट होती है, फिर इसके अंदर की लेयर होती है ये मेंटल होती है, सबसे अंदर वाली लेयर जो सबसे अंदर की होती है इनर मोस्ट लेयर, उसे हम कोर कहते हैं. सो ये जो मेंटल है, इतना जो लेयर है ये, इस मेंटल के थ्रू क्या होती है कि हमारे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ जब होती हैं तो वो रिएक्शन के थ्रू, वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू वो अंदर से मेंटल से जो होती है हमारी, वो CO2 की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है. अगर हम टाइप्स ऑफ कार्बन साइकिल की बात करें तो उसमें दो टाइप की कार्बन साइकिल होती हैं, स्लो कार्बन साइकिल एंड फास्ट कार्बन साइकिल. पहले हम डिस्कस करेंगे स्लो कार्बन साइकिल. स्लो कार्बन साइकिल में होता है थ्रू अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड टेक्टोनिक. स्लो एज इसका जो नेम है वही डिपेक्ट करा है कि ये बहुत स्लो करती है, यानी कि इसमें हंड्रेड्स ऑफ ईयर या फिर मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इन प्रोसेसेस को अंडरगो करने के. एंड इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका, फॉर एग्जाम्पल वीदरिंग ऑफ रॉक्स. रॉक्स की वीदरिंग में क्या होता है, जैसे कि 1 to 200 मिलियन, तो उसमें क्या होता है, रॉक का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमें क्या लगता है हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं उसमें करने के लिए. ऑन एन एवरेज 10⁻13 to 10⁻14 grams of carbon move through the slow carbon cycle every year. These values are important, you can remember them. In comparison, human emission of carbon to the atmosphere are on the order of 10⁻15 grams. ह्यूमन का जो है, वेयर जो फास्ट साइकिल है वो ज़्यादा एमिट करते हैं 10⁻16 से 10⁻17 ग्राम्स ऑफ कार्बन पर ईयर. नाउ इफ़ हम बात करें फास्ट कार्बन साइकिल की, तो फास्ट कार्बन साइकिल वो होती है जिसमें जो कार्बन टर्नओवर होता है वो मेजर्ड होता है या तो ईयर्स में या फिर आपके डेकेड्स में. डेकेड्स मीन्स 10 ईयर्स. 10 ईयर्स की अगर आपका लाइफ टाइम है, टाइम जो हमारा होगा 10 ईयर्स होगा, तो इतना फास्ट जो ये है फास्ट हमारा जो कार्बन साइकिल है वो अंडरगो हो रहा है, देयरफॉर कार्बन का टर्नओवर हमें जल्दी मिल रहा है, इसलिए हम इसे फास्ट साइकिल कहते हैं. इस कैटेगरी में जो मोस्टली ऑर्गेनिक कार्बन होती है वो फ्रॉम प्लांट्स, एंड ये कार्बन जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है रेसिड्यूज ऑफ द प्लांट्स ऑन द सॉइल सरफेस. एंड ऑर्गेनिक कार्बन जो इसमें आती है वो होती है थ्रू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स. इसके अंदर हमारी जो फर्दर जो हमारी कार्बन होती है वो 6 कैटेगरीज में डिवाइड होती है. अगर हम बात करें, इसमें आता है प्लांट्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स आर द मेन कंपोनेंट्स होते हैं इसके फास्ट कार्बन साइकिल के. फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इन द ओशियंस, एंड प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करते हैं एटमॉस्फेयर से और फिर उसे कार्बोहाइड्रेट में ट्रांसफर कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सन, बोथ प्लांट एंड प्लैंक्टन्स कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू फॉर्म शुगर, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स. एंड इसकी केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये CO2 प्लस H2O वाटर प्लस एनर्जी गिव CH2O. तो ये क्या है हमारा, ये कार्बोहाइड्रेट्स है. आगे ये कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 ग्लूकोज वगैरह बनाते हैं. नाउ जो फर्दर डिवाइडेड कैटेगरीज होती हैं कार्बन की, वो होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें मोस्टली जो होता है सेल्यूलोज होता है, जो हमारा 15 से 16% होता है. हेमी सेल्यूलोज 10 to 30%, शुगर एंड स्टार्च 1 to 2%.
सेकेंड हमारे नाइट्रोजन कंटेनिंग प्रोटीन्स और एमिनो एसिड, उनके अंदर भी कार्बन होता है। थर्ड लिग्निन, जिसके अंदर 5 to 30% प्रेजेंट होता है। पैक्टिन 1%। वैक्सीज एंड पिगमेंट, जैसे कि आपकी क्लोरोफिल वगैरह, क्लोरोफिल में भी हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है 1%। नेक्स्ट इज अदर्स में अगर हम बात करें तो उसमें आते हैं फैट्स, ऑयल्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड हाइड्रोकार्बन 5 to 20%। अगर हम प्रोसेस इन्वॉल्व की बात करें इसके अंदर, तो सबसे पहला होता है फोटोसिंथेसिस, सेकंड डिकम्पोजिशन, कंबशन एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस हमें पता है कि सनलाइट को यूज़ करके CO2 क्या होगी, कन्वर्ट होगी कार्बोहाइड्रेट में, C2H12O6, जैसे कि फॉर एग्जांपल C6H12O6 ग्लूकोज में। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो जो हमारी नॉर्मल कार्बन है, प्लांट्स वगैरह रेसिड्यू है, वो डिकम्पोज हो जाएंगे, फॉसिल फ्यूल्स बना लेंगे, इमोबिलाइज हो जाएंगे। कंबशन यानी कि बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जब बर्निंग होती है तो हमें पता ही है किसी भी कार्बन कंपाउंड्स के कोई सा भी हो, फॉर एग्जांपल CH4 है, अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है तो वो CO2 प्लस वाटर ही रिलीज करेगा। सो कंबशन। एंड नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो होता है ऑब्वियसली जो हम होते हैं एनिमल्स, वो क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं इन द एटमॉस्फेयर बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जो हमारी कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी है वो हम यूज़ करते हैं। नाउ डिकम्पोजिशन इज ऑल्सो सर्व एज अ वेस्ट डिकम्पोजिशन सिस्टम या फिर डिस्पोजेबल सिस्टम। इसके अंदर कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन क्या होता है, मिनरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म, यानी कि जैसे ऑर्गेनिक के कार्बोहाइड्रेट्स उनका CO2 में कन्वर्ट होना मिनरलाइजेशन में आता है। सेकेंड इमोबिलाइजेशन, इसका नाम ही बता रहा है, इमोबिलाइज यानी कि उसे नॉट मूवेबल, यानी कि उसे स्टिर पोजिशन में डालना या फिर स्टिल उसमें। तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक कार्बन जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट होती है। ये रिवर्स प्रोसेस होता है मिनरलाइजेशन का। इसका एग्जांपल है जैसे कि बाय फोटोसिंथेसिस CO2 क्या है, मूवेबल फॉर्म है, वो कन्वर्ट हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट में, जो कि कौन सी फॉर्म है, इमूवेबल फॉर्म है। नेक्स्ट एसिमिलेशन, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उस कार्बन को अपने खुद के यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने खुद के जैसे कि फॉर्मेशन करते हैं सेल वॉल, पेप्टाइडोग्लाइकन्स या सेल मेम्ब्रेन के लिए यूज़ करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। कार्बन साइकिल की इंपॉर्टेंस क्या है, इवन दो CO2 या फिर जैसे कि हमारी जो कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं वो स्मॉल अमाउंट मेट्रोसिस में पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बैलेंसिंग द एनर्जी एंड द ट्रैप्स द लॉन्ग वेव रेडिएशंस फ्रॉम द सन। देयरफॉर एक ब्लैंकेट की तरह वो काम करती है जो कि हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करता है इन अ सर्टेन वे। अगर कार्बन साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी तो उसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जिसमें क्या होता है, क्लाइमेटिक चेंजिंग आएंगे, हीटिंग वगैरह होगी, जो कि जैसे कि विच ऑल्सो कैन लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट अगर हम उसकी रिएक्शन पढ़ें तो उसकी रिएक्शन आती है CO2 प्लस H2O। ये हमारी बेसिक रिएक्शन है और फोटोसिंथेसिस। इसमें 2 कार्बन जो है वो इंटीग्रल कंपोनेंट है एवरी लाइफ फॉर्म के ऑन अर्थ, फ्रॉम प्रोटीन्स एंड लिपिड्स टू इवन अवर DNA। ऑल नोन लाइफ ऑन अर्थ इज प्रेडिक्टेड ऑन कार्बन पे ही बेस्ड है। कार्बन एक की एलिमेंट है क्योंकि हैंस कार्बन साइकिल है अलॉन्ग साइड द ऑर्गेनिक प्रोसेस, इट इज़ वेरी ऑर्गेनिक प्रोसेस एंड ऑक्सीजन साइकिल के अलावा वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लाइफ का एग्जिस्ट होना। नाउ अगर हम ओवरव्यू लें तो CO2 बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट हो रही है आपकी प्लांट्स के अंदर, कन्वर्ट हो गई कार्बोहाइड्रेट्स में। नाउ दीज प्लांट्स आर, ये एनिमल्स हमारे खा लेंगे इन प्लांट्स को, ये प्लांट्स जो होंगे वो डेड डीके भी होंगे। नाउ अब ये प्लांट जो होंगे डेड भी होंगे और इसमें डेड ऑर्गेनिज्म भी आ जाएंगे। ये डेड ऑर्गेनिज्म और हमारा वेस्ट ये आगे जाके क्या करेगा, ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स बना लेगा क्योंकि ये तो डेड हो गया। नाउ ये एनिमल्स क्या करेंगे, और यहाँ पे हमारे आ गए माइक्रोब्स। अगर हम माइक्रोब्स की बात करें तो माइक्रोब्स जो वो क्या करते हैं, वो हमारा डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो डायरेक्टली CO2 का यूज़ करते हैं। एंड माइक्रोबियल रेस्पिरेशन भी होता है, तो रेस्पिरेशन के थ्रू वो CO2 रिलीज कर देते हैं। नाउ ये माइक्रोब्स जो होते हैं प्लांट को भी हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में एंड अदर प्रोसेसेस में, एंड ये माइक्रोब्स जो होते हैं वो एनिमल को भी हेल्प करते हैं। सो दे ऑल आर इंटर रिलेटेड हियर। नाउ दीज एनिमल्स ऑल्सो डाई, जब ये डेड हो जाते हैं तो ये भी उसमें रिलीज हो जाते हैं। हमारा जो रूट होता है प्लांट का वो भी रेस्पिरेशन शो करता है, एंड ऑल्सो प्लांट्स भी, एनिमल्स भी रेस्पिरेशन करते हैं और रेस्पिरेशन के थ्रू ये रिलीज कर देते हैं इस एटमॉस्फेरिक कार्बन को, कार्बन डाइऑक्साइड में एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। हमारी कुछ ऑटो और फैक्ट्री वगैरह का भी एमिशन जो होता है वो भी हमारा एटमॉस्फेयर में ही जाता है। एंड जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था वो हमारा सन को यूटिलाइज करता है, तो वी कैन यूज दिस ऑल्सो। और अगर हम इसमें दूसरे प्रोसेस को वो करें तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रोसेस हो गया मिनरलाइजेशन का। हियर नाउ हियर इट इज डीकम्पोजिशन
एंड जब ये माइक्रोबियल सेल्स जो होती है अपने उसके लिए एसिमिलेशन भी हो रहा है, और ये हमारे यहाँ पे इमोबिलाइजेशन हो रहा है। और अगर हम इस कार्बन साइकिल को डिफरेंट एटमॉस्फेयर में अगर करें तो इतनी जो हमारी है ये एटमॉस्फेयर में होती है, प्लांट्स और एनिमल्स ये हमारे बायोस्फेयर में होते हैं, एंड ये डेड एंड डिके हमारे जियोस्फेयर में होते हैं। तो इसमें डिफरेंट हमारी ये बायोजियोकेमिकल साइकिल है जिसमें बायोलॉजिकल भी है और जियोलॉजिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व है। आई होप आपको ये समझ आया हो। डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर, and also do subscribe so that you will be notified later on, and also give your honest reviews and comment the topic which you want me to make the next video on. Thank you.